with uh, Breakthrough Trust. And we have Ms. Shilpi and Mr. Farman from the Breakthrough Trust. They've both been associated with the Breakthrough Trust for a number of years now and have conducted sessions related to raising awareness regarding harassment and how to handle it with colleges, with NGOs, and with other institutions. So on behalf of the college, I extend a very warm welcome to them. And I hope it turns out to be a fruitful and learning session for all of us here. I hope it gives us food for thought, makes us ask ourselves if the spaces in which we live are truly public for all of us, for men as well as women. So without much ado, I would request our principal, sir, um, to say a few words to our students. Sir has been supportive of all our endeavors and takes keen interest in activities related to students. So I would request Sir to address the principals. Good afternoon to all of you. Am I audible? Yes, sir. First of all, I would congratulate our Internal Complaints Committee for organizing this event. This is not an event, actually, this is a workshop, as I am being told. And this is also very, very relevant. And when there is no lockdown, this kind of a thing also we have been facing a lot in the nearby or peripheral areas, what you are actually have written. But since the lockdown, there is no students are there in the college right now. It is very, very peaceful, at least the nearby area. But this is a very serious issue, and this needs a lot of awareness. And as you see in the academic institutions, this is not an inside issue. This we are saying from our own experiences. What the kids gone through, actually, they are subject to some kind of external pressure, and these kind of things generally now happening outside. This is a very significant improvement in the sense that inside the campus, things have improved a lot, cutting across. That means the kids or the students are, they have become more aware. And events like this or workshops like this will give them more insights about the nuances of these things, so that they can also take it to the next level. That means prevention at the outside level, in the roads or the streets or where they live. So once again, I would congratulate for Dr. Manila for organizing this event. And I hope, despite the examination and all other busy schedule, there are a lot of students are attending this, and I could see some male students are also there, which is a very positive development. So I hope the real intent of this workshop will definitely bring some qualitative changes. Thank you. Thank you. I welcome you all. Thank you, sir. I think we can begin the session now, Ms. Shilpi. Yes. So it's over Please. to you then. Thank you, ma'am. फरमान भैया आप हैं यहाँ पे? जी, आप स्टार्ट कीजिए. ठीक है. Okay. So without wasting time, सीधा start करते हैं. So that we have last में थोड़ा time जब हम discuss कर पाएं. तो as you can see, it's a stand up against street harassment in partnership with L'Oreal, Holaback and Breakthrough. तो Breakthrough के बारे में मैम ने आपको थोड़ा brief दे दिया है. Later in the session, I will tell you more about it. So this topic is very very important also,
बहुत से लोगों के लिए ये डिस्टर्बिंग हो सकता है, बिकॉज वी इन दिस सेशन विल वॉच लॉट्स ऑफ वीडियोज एंड we'll talk about this with giving our own examples, and throughout session काफ़ी अपोज भी हैं. तो I would like कि आप लोग during session एक interaction बना के रखें so that session सबके लिए fruitful हो पाए. एंड जैसा कि प्रिंसिपल सर ने बोला कि काफ़ी बॉयज़ भी है, तो ऑब्वियसली ये सेशन सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं है, ये बॉयज़ के लिए भी है कि हम इसमें बाई स्टैंडर्ड इंटरवेंशन की भी बात करते हैं. एंड वी नो कि सिर्फ गर्ल्स ही ये फेस नहीं करती हैं, बॉयज़ भी फेस करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. एक क्विज़ के साथ स्टार्ट करते हैं. तो आपकी स्क्रीन पे एक पॉपअप क्विज़ आएगा, तो प्लीज़ विदाउट वेस्टिंग टाइम, एक सेकेंड. सॉरी, फरमान भैया क्या आप स्लाइड शेयर कर सकते हैं? जी मैं शेयर कर. मैं कर देती हूँ. नेक्स्ट टाइम हुआ तो प्लीज़ आप ओपन रखिएगा, क्योंकि मेरे साथ थोड़ा इशू रहता है. तो आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन, एंड प्लीज़ आप लोग चैट बॉक्स में अपना ओपिनियन प्लीज़ लिख के दीजिए. What percentage of women wished someone help them when they were street harassed? तो options are 15%, 79%, 45%, 62%. तो प्लीज़ आप लोग अपने आंसर्स चैट बॉक्स में लिखिए. आई एम यूजिंग 2 डिवाइसेस, यहाँ आपका चैट पढ़ने के लिए, एंड सेकेंड यहाँ से मैं सेशन ऑपरेट करूँगी. तो प्लीज़ अपने ऑप्शंस आप चैट बॉक्स में डालें कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि कितनी वुमेन चाहती थी जब उनके साथ स्ट्रीट हरासमेंट हो रही थी उनकी कोई हेल्प करता. 79%, विवेक 79%. ओके, देयर आर 38 पीपल. आई होप कि 10-20 लोग भी थोड़ा क्विकली रिस्पॉन्ड कर दे. आई होप जैसा मैम ने बताया कि आप लोग काफ़ी यूज टू है जूम लिंक के, तो आई नो कि ये काफ़ी कंफर्टेबल होगा आप लोग के लिए करना. ठीक है, थैंक यू. मैम बीच में ना बच्चे जुड़ रहे हैं, तो आई वुड लाइक कि कोई एक बंदा रिस्पॉन्सिबल हो कि उनको एंटर करने दे रूम में. हाँ, we'll take care of that. Yeah. ओके मैम. सो एक सर्वे के हिसाब से वी हैव फाइंड आउट कि ओनली 25% वुमेन सेज कि समवन हेल्प देम, जबकि 79% वुमेन ने कहा कि उनकी कोई हेल्प करता, उन्होंने विश किया कि उनकी कोई हेल्प करता. बस सिर्फ 25% लोगों की हेल्प हो पाई. तो आप देख सकते हैं कि ये गैप कितना बड़ा है. तो आज हम इस सेशन को, इस ट्रेनिंग को इसलिए कर रहे हैं ताकि इस गैप को हम फिल कर पाएँ. जब आने वाले टाइम में जितनी % वुमेन चाहे कि उनकी कोई हेल्प करे, उतने लोग अवेयर रहें कि हाँ उनकी लोग हेल्प हो सके. तो आज का सेशन बेसिकली हम यहाँ से जो भी आज लर्न करके जाएंगे वो, और आज के सेशन के बाद हम कभी भी अपने साथ या आसपास स्ट्रीट हरासमेंट होते हुए देखेंगे तो उसमें कैसे सेफली इंटरवीन करें, हम ये लर्न करेंगे. और आज का सेशन बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला, we deepening our understanding of street harassment. हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को और डीपर बनाएंगे कि स्ट्रीट हरासमेंट होता कैसा है, ये दिखता कैसा है, और ये कहाँ पॉसिबल है और किन के साथ होता है. सेकेंडली, लर्निंग हाउ टू इंटरवीन इफ़ यू विटनेस हरासमेंट. जब किसी और के साथ हो रहा होगा तो हम कैसे उसमें सेफली इंटरवीन करेंगे. थर्ड, वी विल लर्न कि जब हमारे साथ हरासमेंट हो रही हो तो उसमें कैसे हम रिस्पॉन्ड करेंगे. फोर्थ, जब हम सब कुछ लर्न कर लेंगे प्रैक्टिस में, तो हम लर्न करेंगे कि प्रैक्टिस के थ्रू कि हमने आज जो भी सेशन में लर्न किया है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे. तो बेसिकली जैसा मैंने बताया कि पूरा सेशन इंटरैक्टिव है, तो आई वुड लाइक कि आप लोग इंटरैक्ट करें जैसा आपने पहले वाली स्लाइड पे किया. तो काफ़ी बीच में ऐसे ही आपको पोल्स आएंगे, आपको रिस्पॉन्ड करना होगा, कुछ वीडियोज़ होंगे तो हम बीच में बातचीत करेंगे. स्टिल आई विल वांट कि सेशन थोड़ा इन शॉर्ट रहे ताकि हम एंड में टाइम रखें तो हम एंड में आराम से बात कर पाएँ, बिकॉज हमारे पास टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है. सेकेंडली, आपके पास कोई ओपिनियन हो या फिर बीच में आपको कुछ भी लगता है कि आपको शेयर करना है,
तो आप चैट बॉक्स में भी अपना रिस्पॉन्स, अपनी चीज़ें बता सकते हैं, माइक को अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। और अगर लगता है कि सबके साथ आप कंफर्टेबल नहीं है शेयर करने में, तो आप डायरेक्टली मुझे मेंशन करके भी बता सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि ड्यूरिंग सेशन आप बताने में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप सेशन के बाद भी आई विल शेयर माय नंबर एंड ईमेल आईडी, आप मुझे कॉल करके भी अपनी चीज़ें, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। एंड बिफोर दिस विल स्टार्ट द सेशन, अभी हम एक चीज़ और यहाँ नियम बनाएंगे कि विल क्रिएट अ सेफ इन्वायरमेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम बाहर इन्वायरमेंट एक सेफ क्रिएट करेंगे, तो हम यहाँ भी एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, ताकि कोई भी हम में से अपनी कोई एक्सपीरियंस यहाँ कंफर्टेबली शेयर कर पाता है या कर रहा है, तो उस बात को लेकर हम उनका मजाक ना बनाएं, उनको कोई टीज ना करे। तो इस बातों का ध्यान में रखेंगे। और कुछ वीडियो शायद आप लोगों के लिए डिस्टर्बिंग हो सकता है, कोई चीज़ें रिकॉल कर सकते हैं उस चीज़ों से रिलेटेड, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग अपना ध्यान रखें, और जब भी वीडियो प्ले हो तो अपने माइक को टेस्ट करें। और कभी आप थोड़ा अजीब सा फील करते हैं तो सेशन के बीच लंबी गहरी सांसें ले, पानी पी सकते हैं। आप अपना ख्याल सुरक्षित तरीके से रखिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम शिल्पी है और मैं ब्रेक थ्रू से हूँ, और मैं एक सेक्सुअल हरासमेंट की ट्रेनर हूँ। मेरे लिए टॉपिक क्यों इम्पॉर्टेंट है या फिर मैं इस सेशन से क्यों जुड़ी हूँ, उसके पीछे भी काफ़ी वजह है, क्योंकि मैंने भी पूरे थ्रू आउट लाइफ काफ़ी जगहों पे ये चीज़ें फेस की हैं, सेक्सुअल हरासमेंट और स्ट्रीट हरासमेंट जैसी चीज़ें। और थ्रू आउट लाइफ डिफरेंट स्टेजेस में भी फेस की है, अपने एज के अलग अलग स्टेजेस में भी फेस की है। उसमें से मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि 2013 में मैं फरीदाबाद शिफ्ट हुई अपने ब्रदर के साथ। मेरे पेरेंट्स ने यहाँ एक फ्लैट खरीदा। मेरे पेरेंट्स वैसे यहाँ नहीं रहते हैं, तो उससे पहले मैं दिल्ली में रहती थी, लाजपत नगर के आसपास। मैं ये नहीं कह रही कि दिल्ली बहुत सेफेस्ट एरिया है और फरीदाबाद नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन हाँ, मैं दिल्ली में इतना कुछ फेस नहीं किया था, या फिर वो शायद वंस इन अ ब्लू मून चीज़ें होती थी। बट मैं जब फरीदाबाद शिफ्ट हुई 2013 में, तो मेरे साथ आए दिन चीज़ें इस तरह की होती रहती थी, सुबह शाम, या फिर एक ऑल्टरनेट डेज पे मुझे स्ट्रीट हरासमेंट जैसी चीज़ें फेस करनी पड़ती थी। कभी कोई स्टॉप करता था, या फिर जाते हुए टच करके चले जाना बाइक पे, या कमेंट करना, या गाने गाना, इस तरह की चीज़ें मेरे साथ फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ गई थी। तो ये मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग था। तो मैंने अपनी मॉम को कॉल किया, मैंने बोला कि मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम्हें जहाँ रहना है वहाँ शिफ्ट हो जाओ। तो फिर मैंने कालका जी में पीजी लेके मैं वहाँ शिफ्ट हुई। तब मैं कॉलेज में थी, तो मुझे काफ़ी परेशानी होती थी यहाँ से आने जाने में, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी जगह। वापस से 2016 में वापस से मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। अब ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं होती हैं, बट हाँ, काफ़ी एरिया डेवलप भी हो गया है। सेकेंडली, मुझे भी एक चीज़ों को हैंडल करने का एक अलग तरीका आ गया है, या मैं अब मैं इतनी एम्पावर्ड फील करती हूँ कि मुझे चीज़ें हैंडल करने आ गई हैं। अब मुझे चीज़ें इतनी डिस्टर्ब नहीं करती हैं। तो इस टॉपिक से जुड़ने के लिए ब्रेक थ्रू का एक बहुत बड़ा साथ मिला है मुझे, तभी मैं यहाँ पहुँच पाई हूँ और आप लोगों को सेशन दे रही हूँ। तो ब्रेक थ्रू के बारे में थोड़ा बता दूँ। ब्रेक थ्रू 20 ईयर्स से दिल्ली में काम कर रहा है। दिल्ली के अलावा ये 4 और राज्यों में काम कर रहा है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। जहाँ की जो ज़्यादा समस्या है ये उन पे काम करता है। तो हरियाणा में ये गर्ल्स सेक्स रेशियो पे काम करता है, बिहार उत्तर प्रदेश में ये अर्ली चाइल्ड मैरिजेस होते हैं, ये उन पे काम करता है। DU के बहुत सारे कॉलेजेस है जो ब्रेक थ्रू से कई सालों से एसोसिएटेड है, उनके साथ काफ़ी वर्कशॉप और सेमिनार्स हो चुके हैं। बट ये पहली बार हुआ है कि मैंने श्यामलाल कॉलेज में नीना मैम के थ्रू यहाँ कांटेक्ट किया और ये सेशन कर पाई। अदरवाइज बाकी जगह कॉलेज में पहले से ही उनको पता होता था, और ये ऑनलाइन पहली बार उनके साथ हमने किया था। पहले से फिजिकल ट्रेनिंग काफ़ी हुई है उनके साथ और वर्कशॉप्स हुए हैं। तो आप 2 फोटोज़ देख पा रहे होंगे, एक रिंग रिंग और एक दखल दो। रिंग रिंग हमारा बहुत पुराना कैंपेन है। आप लोगों में से शायद कई लोगों ने मूवी थिएटर्स या फिर टीवी पे देखा होगा कि कभी भी हम डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीज़ें अपने आस पड़ोस होते हुए देखते हैं, तो कैसे बेल बजा के हम किसी बहाने से चीज़ें मांग के उसमें सेफली इंटरवीन करके उस सिचुएशन को, उस घटना को होने से रोक सकते हैं। सेकेंड, दखल दो हमारा रिसेंट कैंपेन है। अगर आप यूट्यूब पे जाएँ तो आपको इससे रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ मिलेंगी, जिसके एम्बेसडर राजकुमार राव है। और ये बात करता है कि आसपास जब भी कोई किसी प्रकार की आप हिंसा देखते हैं, वायलेंस देखते हैं, तो उसके लिए आप आवाज़ उठाएं। और लॉरियल और ब्रेक थ्रू ने टाई अप करके ये कैंपेन आप लोग तक पहुंचाया है, क्योंकि लॉरियल का भी सेम कॉन्सेप्ट था कि हम वायलेंस फ्री स्पेस, सेफ स्पेस क्रिएट करें ताकि वहाँ सेक्सुअल हरासमेंट और स्ट्रीट हरासमेंट जैसी चीज़ें ना के बराबर हो। दखल दो का भी सेम कॉन्सेप्ट है।
तो तभी ये टाई अप होके और आप तक पहुंच पाए हैं। एक और है जो आप लोगों ने फर्स्ट स्क्रीन पे देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वो है होला बैक। होला बैक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ब्रेक थ्रू एक इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, होला बैक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। होला बैक 20 सिटीज़ में काम कर रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका ये ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण 2005 में हुआ था। कुछ ग्रुप ऑफ यंगस्टर पीपल ने किया था और इसमें एक सेफ स्पेस क्रिएट करने की बात हो रही है जहाँ पे सब कोई इक्वालिटी के साथ रह पाएँ। आप होला बैक की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको 15,000 प्लस स्टोरीज मिलेंगी यही सेक्सुअल हरासमेंट और स्ट्रीट हरासमेंट की। उनका एक उद्देश्य है कि वो सब तक पहुँचे और लोग उनको उनकी वेबसाइट पे जाके स्टोरीज अपने आप शेयर करें। तो ड्यूरिंग सेशन मैं भी चाहूँगी कि अगर आपको अपने लाइफ से कोई जुड़े हुए इंसिडेंट याद आते हैं तो आप उनको ध्यान में रखें और बाद में आप आई होला बैक पे जाके अपनी स्टोरी को शेयर कर सकते हैं। और वहाँ पे जो आप जाएंगे तो ये इंडिया में तो ये प्रोजेक्ट इस साल फैब में आया है। आपको बहुत पहले से ही वहाँ पे ऑलरेडी इंटरनेशनल स्टोरीज मिलेंगी जो आपको काफ़ी रिलेटेबल लगेंगी कि उनके साथ भी चीज़ें होती हैं और वो भी चीज़ें फेस करते हैं। और ये पूरा ट्रेनिंग का डिज़ाइन जो आप लर्न करेंगे आज, वो होला बैक ने किया है। और हमें भी होला बैक ने न्यूयॉर्क में जो बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने हमारी ट्रेनिंग की थी। तो बिना देर के हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रीट हरासमेंट? आप लोग के लिए एक पोल है, ये स्लाइड में स्किप कर देती हूँ बिकॉज आई नो कि आप लोग काफ़ी यंगस्टर, आप लोग को आइडिया होगा। तो एक पोल है, आप लोग प्लीज़ आंसर कीजिए। व्हाट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रीट हरासमेंट हैव यू एक्सपीरियंस्ड? ऑप्शंस आर स्टेयरिंग, विसिल, animal noise, inappropriate gesture, inappropriate comment about your appearances, standing unnecessarily close to someone, public exposure, following, stalking, groping, grabbing, none of the above। तो आप 1 2 3 4 5 ऐसे करके भी आंसर कर सकते हैं ताकि जल्दी क्विकली आप लिख पाएँ। तो आप लोग प्लीज़ चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करके बताइए कि आप लोगों ने इनमें से क्या फेस किया है। और ये मल्टीपल है तो आप मल्टीपल चॉइस भी ऑप्ट कर सकते हैं। विवेक आंसर 9। अच्छा, आपने कुछ भी फेस नहीं किया है। ओके विवेक जी। ऋषिका आंसर 9 9। नाइन नाइन। गुड टू नो कि आप लोगों के साथ इस तरह की चीज़ें नहीं हुई है और आप लोगों ने ऐसा फेस नहीं किया है, बिकॉज इसमें से सारी चीज़ें मैंने फेस की है। ऑल ऑफ द अबव। ओके 1 and 2 9 9। आंसर 7। आंसर 1 स्टेयरिंग। ओके, तो अभी हम लोग एक वीडियो देखते हैं और वीडियो प्लीज ध्यान से देखिएगा, फिर एंड में बताइएगा कि आपने इसमें क्या नोटिस किया, इस वीडियो में आपने क्या एग्जैक्टली नोटिस किया। 78% of women have experienced sexual harassment in public spaces, like a suggestive comment, a sexually explicit touch, an inappropriate gesture, or being followed. And it threatens our self-worth. It takes over who we are. We see it happen. Let's stay cautiously silent and uncomfortably look away. Maybe because we don't know what to do, how to help, or how to combat the situation. The time has come to keep our heads up and to stand up for each other against street harassment. And everyone can be part of the solution. Sorry, I'm gonna pay for it. Excuse me. Is this yours? Can you help me, please? I'm looking for this direction. L'Oreal Paris and the nonprofit organization Holla Back have joined forces to teach men and women how to combat sexual harassment in public spaces with simple but impactful actions. Take a stand.
मेरी वॉइस आ रही है? बीच में क्या नेटवर्क आई गेस चला गया था मेरा। जी शिल्पी, आवाज आ रही है। ओके, तो प्लीज़ आप लोग चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करके बताइए कि आपने इस वीडियो में क्या नोटिस किया। और मैं ये भी चाहूँगी कि अगर किसी को अनम्यूट करके बताना है क्विकली तो वो वैसे भी बता सकते हैं कि आपने एग्जैक्टली चैट बॉक्स आपने क्या नोटिस किया इस वीडियो में। नील भाई, मैं मैम को बोलना चाहूँगी, मनीला मैम को, कि हम पूरा सेशन रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, तो मैंने आपसे बोला था कि I know I think had, yes, Shilpi, I remember. I had also requested मैम आपकी Sumanji to voice- take care of that. I'll remind him again. Okay, I'll remind him again. Yeah. मुझे आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, या तो मेरे नेटवर्क के साथ इशू है या फिर सामने से कोई नहीं, issue आपकी है। आवाज क्लियर आ रही है शिल्पी, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। ठीक है आपकी आवाज।